Welcome back in our new online video class. Student, let me remind you once again that we are going to read English Reader chapter number 2nd, and the name of chapter number 2nd is Skipping Shoes. Student, on Friday and Saturday video lecture we have covered the story from Once There Was a Girl and to Walking Swiftly Home. यहाँ हमने वंस देयर वॉज अ गर्ल से लेकर वॉकिंग स्विफ्टली होम तक अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था. बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर the remaining part of the story. So students, let's start. Firstly students, I will give you a quick revision what I have taught on Friday and Saturday. So students, I have told you that we are reading the story about a girl named Kitty. Kitty was a such kind of a girl who doesn't like to do anything what people asked her to do. Instead of all the doing works, she used to complain that she wouldn't do anything and she couldn't do any work. So everyone was very disturbed by her. But one day her mother gave a pair of shiny new shoes. She put them on her foot. As she put them on, Kitty was changed herself. Her mother called Kitty to tell the cook to make a pie for dinner. But as she denied it to do, the shoes gave one jump and swept her or took her into the kitchen, where she delivered the message to the cook. Okay. Now when her father said her that she has to bring his letters from post office, she just denied to do it. But her shoes trotting briskly down the street and led her to the post office. When she came to a bridge where she wanted to stop and watch a boat, she forgot the school and also the letters of his father. But the shoes went on walking through. Kitty held on the railing as hard as she could. She wanted to stop there. वो ब्रिज पर रुकना चाहती थी, but her shoes didn't allow her to stop there and took her to the road of her home. Okay. Now students, let's start. Back home, Kitty found that as hard as she tried, the shoes just wouldn't come off. As she returned to the home, Kitty was unable to put off the shoes. ओके जैसे घर पहुंची उसने सोचा था कि वही इन शूज़ को उतार देगी, बट शी वॉज अनएबल टू डू इट. ओके. नाउ time for school, called Mama from upstairs. From upstairs, her mama called Kitty that it was time for school and she had to go school now. Before she could say I want, the magic shoes whisked her off to school. Students, what is the meaning of whisked her off? The meaning of that, took her away suddenly. Whisked her off means took her away suddenly. Okay.
किटी जो थी, ठीक है, वो स्कूल जाने से अभी मना करने ही वाली थी, बट हर मैजिक शूज़, लेकिन उसके जो मैजिक शूज़ थे वो उसे तुरंत स्कूल की तरफ ले गए। एट ब्रेक टाइम अ गर्ल नॉक डाउन द हाउस of corn cobs she had built and made her angry. Okay, at lunch time, when there was lunch in school, a girl knocked down the house of corn cobs she had built. Students, what is the meaning of corn cob? The meaning of corn cob is maze. Okay, she made the house of corn cob and a girl knocked down means fall down it and made her angry. ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है. Now I'll kick your down, Dolly. Okay, when she saw that she replied to Dolly that now she would kick her corn cobs down. Okay, up went her foot but it didn't come down. जैसे ही उसने, ठीक है, उसके डॉली की कॉर्न कॉब को उखाड़ने के लिए अपने पैरों को ऊपर उठाया, इट डिडंट कम डाउन, ये नीचे आए ही नहीं. इट स्टेड इन द एयर एज इफ शी वर गोइंग टू डांस. ओके, वो ऐसे हवा में रहे जैसे कि वो मानो कि डांस करने जा रही हो. द चिल्ड्रेन लाफ्ड ऑन सीइंग दैट. द अदर चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल लाफ्ड एट किटी. वो किटी पर हंसने लगते हैं. एंड फाइनली शी सेड टू डॉली, नेवर माइंड, आई विल फॉरगिव यू. ओके, सीइंग दैट व्हेन अदर चिल्ड्रन वर लाफिंग एट हर, किटी रिप्लाइड टू डॉली दैट शी वुड फॉरगिव हर, कि वो उसे माफ़ कर देगी. उसने उसके मेज़ को गिरा दिया था, इसलिए जो है वो अब उसको माफ़ कर देगी. देन द फूड वेंट डाउन एंड किटी अंडरस्टूड हाउ द शूज़ वॉक्ड. ओके, अब उसके जो फूड थे जो हवा में ही लटक गए थे और नीचे आ ही नहीं रहे थे, वो फूड अब नीचे आ जाते हैं. देन द फूड वेंट डाउन एंड किटी अंडरस्टूड, और किटी ये समझ जाती है कि ये शूज़ जो है वो कैसे वर्क कर रहे हैं. दे वर कोऑपरेटिव. स्टूडेंट्स, दे वर कोऑपरेटिव व्हेन शी वाज काइंड एंड गुड बट स्टबॉर्न व्हेन शी वांटेड टू बी नॉटी. ओके, इट मीन्स व्हेन किटी वॉज काइंड एंड गुड, जब किटी काइंड और गुड रहेगी, देन हर शूज़ वर कोऑपरेटिव टू हर, वो उसकी हेल्प करेंगे, उसकी सहायता करेंगे. बट व्हेन शी वांटेड टू बी नॉटी, ठीक है, वो जब शरारत करना चाहती है, जब शरारती बनना चाहेगी, देन हर शूज़ वर नॉट कोऑपरेट टू हर, वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे, उसका सहयोग नहीं देंगे. To check this, when one of the boys' ball bounced over the hedge, she said kindly, "Perhaps I can get it for you, Willie." Okay, इसको चेक करने के लिए कि क्या है उसके शूज़ उसकी सहायता करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखने के लिए वो विली इज़ द नेम ऑफ अ बॉय. ओके, एक लड़के का नाम है. वो उससे कहती है कि जो हैज, जो बाउंड्री से बाहर उसकी बॉल गई है, वो उसे वापस लेकर आएगी. द शूज़ लाइटली लिफ्टेड हर ओवर द हाई हैज. ओके, जैसे ही उसने विली से कहा कि उसके साथ वो पोलाइट हो गई, उसके साथ वो काइंड हो गई, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, वैसे ही उसके शूज़ जो है वो उसकी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं. द शूज़ लाइटली लिफ्टेड हर ओवर द हाई हैज. ओके, वो शूज़ जो थे उसको किटी को हैज के ऊपर से लेकर वो उसको जंप करवाते हैं, उस बाउंड्री को वो जंप करवाते हैं. हाउ कुड यू डू इट, क्राइड द सरप्राइज्ड बॉयज़. ऑल द बॉयज़ विच वर प्रेजेंट देयर, जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, दे वर सरप्राइज टू सी दैट हाउ किटी
हाउ किटी डू दैट, किस तरह से उसने ऐसे किया है. Kitty laughed and began to dance, pleased that there was a good side to the shoes after all. Kitty laughed. Okay, when the all boys were surprised to see that, the kitty laughed and began to dance, pleased that there was a good side on the shoes after all. Okay, क्योंकि किटी ने उन बच्चों के साथ काइंड बिहेव किया था, पोलाइटली बिहेव किया था, इसलिए शूज़ उसकी हेल्प कर रहे थे. ये देख के वो बहुत ज़्यादा प्लीज़ होती है. प्लीज़ मीन्स टू बी हैप्पी. ओके, खुश हो जाना कि आखिरकार शूज़ जो हैं वो उसकी सहायता करते हैं. शी ट्विर्ल्ड एंड ट्विस्टेड विद प्रिटी एरी बाउंड्स हर फीट बीविश्ड. शी ट्विर्ल्ड, और ट्विर्ल्ड मीन्स टर्न होना, मुड़ना, ट्विस्ट होना. एंड ट्विस्टेड विद प्रिटी एरी बाउंड्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरी बाउंड्स? एरी बाउंड्स मीन्स लाइट एंड डेलिकेट स्टेप्स. ओके, थोड़े लाइट एंड डेलिकेट स्टेप्स मीन्स थोड़ा थोड़ा मूव करना, मीन्स डांस करना. ओके, शी ट्विर्ल्ड, वो टर्न होती है, एंड ट्विस्टेड, और ट्विस्ट करती है और मुड़ती है, विद प्रिटी एरी बाउंड्स, वो डांस के हल्के हल्के स्टेप करती है और वहाँ पे डांस करती है. क्यों? क्योंकि उसके जो शूज़ हैं वो मैजिकल शूज़ हैं. ओके, मैजिकल शूज़ होने की वजह से वो जो है उसको वहाँ पे वो डांस करना स्टार्ट कर देती है. नाउ द गर्ल्स वर चार्म्ड एंड ट्राई टू इमिटेट हर. इमिटेट मीन्स, स्टूडेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमिटेट? इमिटेट मीन्स टू कॉपी, मीन्स नकल करना. ओके, ऑल द गर्ल्स who were present there, they were charmed. Okay, they were very attractive, they were very surprised to see that and trying to imitate her. They were trying to copy her. They were trying to copy her, but they were unable to do like Kitty. Okay, वो उसकी कॉपी करना चाहती हैं, बट दे वर अनएबल, वो लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती. क्यों? वाई? बिकॉज दे हैड नॉट मैजिकल शूज़. ओके, शी डांस्ड, सॉरी, द गर्ल्स वर चार्म्ड एंड ट्राई टू इमिटेट हर, बट नो वन कुड एंड डांस टिल द बेल रैंग. ओके, और उसने तब तक डांस किया जब तक कि स्कूल की जो बेल है वो बज नहीं गई. ओके, नाउ when Kitty reached home, her sister said, "Run and pick some strawberries for lunch." Okay, जब किटी घर पहुंचती है, when she reached at home, her sister ordered her to pick some strawberries for lunch. Okay, वो उससे कुछ स्ट्रॉबेरीज लंच के लिए मांगती है. क्या किटी जो है अपनी सिस्टर के लिए स्ट्रॉबेरीज लाती है? We will read it in tomorrow's audio lecture. Till then, you will revise it again at your home and write the hard meaning in your notebook. So students, we will meet tomorrow's video lecture. Thank you students.